Hello guys, so today in this video basically we'll be dealing with the strategy for the ILI All India Admission Test. As you all know, the dates for the ILI will be out soon and the exams will be commencing within few months, most probably in the month of May. So how to prepare with this exam and what's the exam pattern, what's the perks for pursuing LLM at ILI, and how to go ahead with the subjective as well as the objective and the interview sessions. So that will be drilled in this session. So today in this video, I, Aniket Sachan, who was AIR 11 for the AIAT exam in 2022, is going to share my tips and strategies with you all. So the myself, Aniket Sachan, and I've completed my BLLB honors from RMLU Lucknow, and currently I'm pursuing my last semester of LLM from the same institution. So this is a few slide profile about myself, and I've been selected as a management trainee in Coal India Limited, and I've also appeared for the Shipping Corporation of India legal training exam and at Curate. And these were my ranks at the following LLM entrance examinations. For CLAT, I was AR 206, ILI AR 11, ILIT it was AR 67, and for LU 63. This was just brief profile about myself. Now coming first of all in the most foremost question that why ILI and what's about ILI. So ILI, as you all know, it's a premium institution set up in Delhi. So I'll say the first advantage to pursue a career at ILI for LLM is that if you want to pursue a career in a academic field, the way ILI will shape you in legal research, no other institution will do apart from some extent analysts or analsar. All other NLUs, you just go there, you pass up your degree, but the legal research skills which you acquire here is quite different from the below tier NLUs. So this was an institution set up in 1956 and it promotes legal research. And besides performing important advisory role in fostering empirical research, it also undertakes current legal issues research. So this was a basic idea for the enunciation of ILI. Now moving ahead with today in this slide also I'll be discussing the specializations that are offered in ILI, and if you look in this particular slide, so there are certain foundational subjects, that is RM and your comparative public law, law and justice include rising word, and it offers specialization in criminal law, constitution law, IPR, human rights and legal pedagogy and research. So if you go through the brochure of these subjects, you will find the specialization in these particular fields. Now moving ahead to the fee structure. So if you go for this option for pursuing your LLM at ILI, the following fee structure is, that is 1.5 lakhs is your admission fee. And since ILI does not provide you hostel facilities, so you have to reside in Delhi, and for 1 year, I believe it will cost you around 1.5 lakhs only. So it's a total like 2.5 to 3 lakhs deep if you want to spend a year at Delhi doing LLM in this institution. Now coming to the first and foremost thing, that is your exam pattern. So if you can look at the particular slide, the LI question paper is basically of your 180 marks objective. Not 180, I'll say 140 marks of objective and 40 marks of subjective and 20 marks of for interview. So if you look to your right hand side, basically a short component shows your weightage of marks, that is your first objective type portion for 140 marks, and then comes your subjective paper in which there are 4 questions, 10 marks each of 40 marks and 20 marks of interview. So there is a total compilation of 200 marks paper, and for this you are given 2.5 hours. So in this 2.5 hours you have to do your complete paper with objective as well as your subjective portion. So and the application fee of this exam is around 2600. It's written 2500, but if you'll do the service charges and all things, so it costs you around 2600 rupees. Now coming to the objective portion, what they contain and how is the part-wise distribution. So the 140 marks objective is divided into 40 marks of your part 1 and 100 marks of part 2 objective. So the 100 marks basically deals with your legal portion covering certain laws which is mentioned in the left photo which I have mentioned in this particular slide. Now coming to first part 1, that basically covers 40 marks. It focuses on your GK and English and is a 1/4 negative. सी जीके इंग्लिश के लिए आपको कोई सच एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं है, बिकॉज इंग्लिश में अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से आ रहे हैं एंड इफ यू हैव एक्वेंटेंस ऑन दिस बेसिक फील्ड्स, नुएंसेस ऑफ ग्रामर एंड दी प्रपोजिशंस, सेंटेंस करेक्टिंग and your para jumbles, I'll say, so you will be in a good study to do. And see, they have 4 to 5 marks question on legal maxims like injuria sin damnum, damnum sin injuria, intest republica, stated finis litium, ubi just ibi remedium. So on these basic concepts of legal maxims also there are 5 to 6 marks which adds bonus for you. There would be certain vocab words which you won't be aware. So see that इतना क्वेश्चन जो होगा सबके लिए ही वो प्रॉब्लमेटिक होता है, बिकॉज सबकी vocab इतनी अच्छी नहीं होती. कोई भी एक नॉर्मल वर्ड आ जाएगा, कोई इंग्लिश नहीं होती, एवरीवन इज नॉट दैट मच वेल एक्वेंटेड विद सच वर्ड्स, तो छोड़ना पड़ता है. तो उसमें अगर आपको भी नहीं आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है बाकियों को भी नहीं आ रहा होगा.
So these are the things which you should go through and इसमें घबराने की नहीं। जीके के लिए आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगा, कुछ थोड़ा स्टैटिक होता है, बाकी करंट भी होता है, जैसे अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, बुक्स पे आ गया। तो ये इस पे इतना आप नहीं, अगर आपने लॉ पे भी खींच लिया तो इसमें अगर आप 20 या 15 मार्क्स भी ला रहे हैं, इट्स डन। Now coming to the objective type questions of 100 marks, that is law portion. So you can see the subjects which are covered here. They are jurisprudence, consti, IPC, PIL, your contract, SRA, partnership, SOGA, law of torts, limitation, and environmental law. So I'll have a further slide also for you, so which you can see the marks wise distribution which came in 2022 question paper, which are specially prepared for the candidates who can go through the exam pattern and which subject they should focus more. So that I'll be discussing further. So this was a just idea of what's the paper pattern. Now coming to part 2, that is subjective. So there will be 4 subjective questions which you are required to answer of 10 marks each. And however, there's a catch. They have to write in 150 words. So suppose a very easy question comes to you, like I'll say, what explain the procedure of arrest, or I'll say not, because CRPC not here, so I'll go with the option explain sedition law. So everyone can write 124A coming with the Kedarnath judgment and other judgments like SG Bambatkare was a recent one. So you are well aware with those things, you can write, but there's a lot of things to write. If question comes on Article 21, you can write a 2 to 3 pages answer on that from Gopalan to Menka Gandhi position. But you have to not do that thing in this particular paper because there is a 150 word catch limit, and to precise your answer in that's the biggest challenge, because you also have a time limit for the same. So you have to be very cautious while answering the way. You have to know a proper answer writing structure. You should not devote your time in writing extra case laws which are not required. Just focus on the chunk of very important case laws and very important lines. So this was a brief idea about these things. And the part 4 is Viva Voce, which I am discussing further in this video. So those candidates who make up in the merit list, which is prepared after these objective questions and subjective comprising both of them, a list will be prepared, and if you make into that, those selected candidates will call for the interview. And in interview, it's around 5 to 10 minutes interview process. For some candidates, last around 2 to 3 minutes also. It's a totally discussion based thing. And so there's a total examination pattern of 200 marks, which are given for 2.5 hours. And the cost for this exam pattern, this exam basically of ILI entrance is 2600 rupees. Now moving how the result comes of part 1, part 2 and part 3. So once you are done with the written examination of objective plus subjective, a merit list is prepared in which you get your scores, how many did you opted correct, how many were wrong, how many blank, and how many total questions were there, how much marks you obtained, and out of subjective also. So now see, if you look at the chunk of the marks, you can easily find out the range. So अगर आप मैं कह रहा था जैसे कि 140 marks के question, now you can see my 106 questions were correct and I did 19 wrong and 15 blank because I left them because there was chance of negative. So in these cases you can see, I'll say refer the part B, that is marks out of 40. I scored 20 marks, and if you can look the list which I have mentioned also, maximum students were there who were falling in the range of 10 to 15 marks in subjective out of 40. So that's the catch, because ILI highest marks which has offered in this particular examination of 2022 was 25 or 29. I'm not sure, but within these 2 marks only there were marks. There was one candidate who scored this much marks. So if you look at the paper pattern and the marking they do a very stringent marking. So you can't assume a very lenient answer writing for this exam. So you've got a good answer writing skill. And if you are scoring 20 or above, then you are very much high potential candidate for appearing for the interview. So you have to be very, very cautious while dealing with such things. And because of this, you will surely get close towards selection. My score was 121 out of this 180 marks. And I was, if I look from the top list also, I was around the top 25 candidates, because the highest was around 140s. The remaining candidates had a difference of 1 to 2 marks and the result was still 121. That was the scenario. Now coming ahead, the first merit list. This merit list is prepared once after your objective merit list is out and your Viva Voce scores are coupled. So with this, your first merit list comes, which tells you the final way how the candidates have scored. This was the first merit list, and I was AR 11 in this. And you can see the first person who was Aman Mishra. He also scored 145 marks out of written, and in you can see the marking from the if you look at the subjective marks, that is part B marks out of 40, he scored 25 marks. So this was the weightage. You can see the distribution, and if you look at the column 7, I'll say not column, row 7, Rohan Kirti, that person scored 29 marks in subjective. So you can see the variation in marks in the top 13 students only. So this way I say subjective forms a very much important chunk that you should devote for your answer writing, and you should be very well prepared with certain answers which are very important ones. So by this presentation, I was wanted to show you how I like marks for you in subjective question, because अगर आप देखेंगे बाकी कोई भी वीडियोस होंगे उससे आप एक एनालिसिस नहीं लगा पाओगे कि किस बेसिस की मार्किंग की जा रही है.
बट आप जैसे आपको बता रहा हूँ, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, एक लीनियंट चेकिंग नहीं होती, एक सब्जेक्टिव चेकिंग में काफी आपको ध्यान से लिखना पड़ेगा, बस काफी टफ चेकिंग हो रही है, क्योंकि आप डिफरेंस भी रेंज के मार्क्स देखेंगे, जो टॉप में भी है किसी के 15 भी हैं, किसी के 19 हैं, किसी के 24 भी हैं, किसी के 16 भी हैं। तो ये डिफरेंस रेंज जो आ रहा है, ये पूल काफी आपको एक आइडिया देने में हेल्प करता है। एंड इफ यू लुक एट दी टॉप 10 कैंडिडेट्स, हाईएस्ट वाज 145, टॉप 10 आते आते वो 121 पे आ गया। तो यानी कि ज्यादा अंतर नहीं था लोगों में। तो ये सिर्फ अभी इंटरव्यू के पहले के मार्क्स हैं। एंड इफ यू लुक एट द इंटरव्यू में आप देखेंगे ज्यादा डिफरेंस ऑफ मार्किंग नहीं, उन्होंने रेंज रख दी थी 10 to 14, उसी में वो मार्क्स दे रहे थे डिपेंडिंग ऑन योर क्वेश्चंस एंड वे ऑफ यू आंसर। सो आई स्कोर 13 मार्क्स आउट ऑफ 20 एंड माय कपल्ड स्कोर वाज 134 मार्क्स। सो दिस वाज अ वेटेज। एंड अगर आप मेरे ऊपर के कैंडिडेट्स भी देखेंगे, जो मेरे ऊपर 4-5 लोग हैं, देयर वाज डेसिमल्स डिफरेंस इन बिटवीन अमंग्स अस। सो ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो अगर आपकी तैयारी आप थोड़ी बहुत भी ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से कर लेते हैं और आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है, सब्जेक्टिव में अगर आप अच्छे से 20 मार्क्स लें, यू विल श्योरली मेक द कट एंड यू विल सिक्योर अ सीट इन दिस पर्टिकुलर प्रीमियम इंस्टीट्यूशन। तो दिस वाज एन आइडिया फॉर द फर्स्ट मेरिट लिस्ट, हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, एक अंडरस्टैंडिंग भी आपको कि कैसे मार्किंग होती है, जो बाकी वीडियोस आपको नहीं दिखाएंगे। तो ये मैं चाहता हूँ कि एक होलिस्टिक ओवरव्यू आप लोग को मिले। नाउ कमिंग हाउ टू स्टार्ट, सी फॉर एनी कैंडिडेट स्टार्ट करना सबको पता होता है, बट वेयर टू एंड इज द बिगेस्ट डाउट, कि कैसे स्टार्ट करेंगे, हम कहां तक अपने आप को लिमिट रखें। सो अगर आपको आईएलआई का एग्जाम निकालना है, जैसे ये मई का एग्जाम है, अब तक आपको शुरू कर देना चाहिए था। अगर नहीं किया तो अब से कर दीजिए, नहीं तो आईएलआई नहीं निकलेगा, बिकॉज कंपटीशन थोड़ा है। भले कम बच्चे हैं, बट क्लोज शॉट कंपटीशन होता है। मैंने आपको अपने ऊपर दिखाया ना, 0.25 0.5 0.75 पे 5-6 बच्चे मेरी रैंक के मुझसे ऊपर थे। तो ये डिफरेंस आएगा। इस बार नहीं आया हम लोग में ज्यादा, बट हो सकता है आपके में ऐसे 20 बच्चे हो। So you cannot never be sure, and when you do such negative thing and you miss the call, that time you regret. So I'll say start preparing yourself from right now. First, go through the major chunks of the subjects which are there. Focus on quantity, क्योंकि quantity में बहुत बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं। कौन से अमेंडमेंट से क्या चीज आई, 52 अमेंडमेंट क्या लेके आया, 61st अमेंडमेंट से क्या आया, देन द रिजर्वेशन अमेंडमेंट्स व्हिच आर देयर लाइक 77, 81, 85 आर्टिकल्स, बहुत ही प्राइमरी जो होते हैं। 280 में क्या है, इमरजेंसी कहाँ पे दे रखी है, देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लाइक पार्ट 15 में क्या है, पार्ट 18 टू पार्ट 20 में क्या है। ये हो गया। जूरिस में आप जाएंगे तो जूरिस्प्रूडेंस में भी क्वेश्चंस बहुत ही प्रीमियम स्कूल्स के आएंगे, ऑथर्स की बुक्स के आ जाएंगे। बेंथम की कौन सी बुक थी, ऑस्टिन की कौन सी बुक है, हु केम अप द कांसेप्ट ऑफ हेडोनिस्टिक कैलकुलस। सो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस, एंड I'll further also discuss them. So the time period that you devote is basically 5 to 6 months, and you need to build your command on P8. So what's P8 that I've discussed further, well I will explain it more in detail. Then practice previous questions. See, एक सिंपल वर्ड ऑफ एडवाइस मैं दूंगा, अगर आरआई निकालना है प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, प्रीवियस ईयर से अच्छा खासा वेटेज रिपीट होता है। 2022 में 25 से 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लॉ में रिपीट हुआ था। सो अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं लगा रहे, देन सॉरी ब्रो, आई विल से द गाइज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, चांसेस बहुत मुश्किल हो जाएंगे, बिकॉज एक एनालिसिस नहीं होगा आपको। मान लो जूरिस का क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा है, जॉन रॉल्स के बारे में आप नहीं जानते, जस्टिस को लेके वही ज्यादातर बातें बोलते हैं, तो आप मॉक नहीं कर पाओगे। अगर आपने देख लिया होगा कि जाए, और अगर आप एक दो पेपर का एनालिसिस करेंगे ना, इस बार भी 22 में क्वेश्चन था ऑन लिबर्टी, ऐसे किसने लिखा है, पर अगर आपने 2-3 साल का पेपर, इनका फेवरेट क्वेश्चन है ऑन लिबर्टी का, 3 साल से इन्होंने पूछा हुआ क्वेश्चन, ये जेएस मिल ने ऑन लिबर्टी का ऐसे लिखा हुआ है। सो दिस थ्रू एंड थॉरो एनालिसिस गिव्स यू एन आइडिया कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन है, आपका जूरिस्प्रूडेंस में क्या पढ़ना चाहिए। बिकॉज मटेरियल तो मार्केट में बहुत है, यूट्यूब पे तमाम वीडियो मिल जाएंगे आपको। यू हैव लॉट ऑफ बुक्स, यूनिवर्सल की गौरव मेहता आती है, एलएलएम की, तो मार्केट ऑफ कंटेंट फ्लैट पीजी के लिए भी अच्छा खासा आ गया। Then but how to limit yourself, which questions to focus on, that's the analysis you will get by doing the previous year questions, and that's why you have to do this. Secondly, maintain आपका speed efficiency. You have to maintain the speed efficiency. क्लैट का पेपर नहीं है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव आएंगे, बट कभी कभी ऑप्शंस क्लोज कट के होते हैं कि आपको फंस जाएंगे। अब मान लीजिए फाइंडर ऑफ गुड्स पूछा है कॉन्ट्रैक्ट का, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन 70-71 में हो जाता है कि फाइंडर ऑफ गुड्स कहाँ दे रखा है, 71 में है 70 में। तो ऐसे क्वेश्चन आप थोड़ा सोचते हो तो उसमें टाइम जाता है। So for those things also I say maintain speed efficiency, and last point that is practice MCQs। तो जितनी भी आपकी आती है, अगर आप जुडिशियल एस्पिरेंट हैं तो आप ऑलरेडी बहुत एज पे हैं, बिकॉज यू विल गेट थिंग। सो बेसिकली आपको यही बुक्स जो है गौरव मेहता की आती है, सिंगल जुडिशियल वॉल्यूम्स आती हैं। अगर आप जुडिशियल एस्पिरेंट में देखे होंगे, सिंगल की 4 पार्ट्स में वॉल्यूम्स आती हैं, जैसे पार्ट 1 में सारे प्रोसीजर लॉ, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस आईपीसी है आपका। जो पार्ट 2 आता है उसमें कॉन्स्टिपीआई है, जूरिस मिल जाएगा आपको। पार्ट 3 में कॉन्ट्रैक्ट्स बनता है। तो पार्ट 1, 2, 3 उसके जो है वॉल्यूम सब लेके सॉल्व कर सकते हैं। सो उससे आपके 2 काम हो जाएंगे, जुडिशरी के क्वेश्चंस का भी आइडिया लग जाएगा, एंड एक क्वेश्चन बैंक का आपको आइडिया लग जाएगा जो एलएलएम में भी आता है। उसमें आईएलआई का भी कंपाइलेशन थोड़ा मिल जाता है आपको, तो यू कैन गो थ्रू देम, बिकॉज जो जुडिशरी क्वेश्चंस होंगे वो इधर भी आएंगे ना। आईपीसी का जो क्वेश्चन जुडिशरी में आ रहा है कि भाई सेक्शन 96 आईपीसी क्या है, वो कॉमन ही चंक रहेगा ना, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। So this was a slight video regarding how to prepare. Now coming to the analysis. So this was the thing I was talking to you, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है।
See, so the first 9 subjects are there in this. This is the weightage, and I say P8. I consider P8 पे ज़्यादा focus करिए ना कि P9 पे. This P8 is basically top 8 subjects which I have mentioned here. सी पीआईएल का क्या है कि पीआईएल में आप शोर शॉर्ट नहीं कर सकते, लिमिटेड सोर्स नहीं है पीआईएल का, बिकॉज कई सारे ऑथर से क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी आ सकते हैं, चार्टर्स बेस्ड भी आ सकते हैं, प्रोटोकॉल्स बेस्ड भी आ सकते हैं. सो फॉर दैट थिंग आई से आप उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे. रीडिंग सबकी करनी है, यू कांट स्किप एनी ऑफ देम. आप भले चाहो तो सारे लिमिटेशन रोक दो, सिर्फ मार्जिनल नोट पढ़ के चले जाओ, मे बी इट वर्क्स फॉर योर केसेस, बट अवॉइड नहीं करना है व्हेन यू हैव टाइम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जूरिस्प्रूडेंस का देखेंगे क्वेश्चंस कैसे हैं. 10 क्वेश्चंस वेटेज है, क्वांटिटी में 13, टॉट्स 12, टॉट्स आल्सो फॉर्म्स अ वेटेज. आई गेस और कोई भी ऐसा एग्जाम है नहीं, क्लैट हो या आईलेट हो या एलयू का हो, डीयू का हो, जिसमें टॉट्स ऐसा वेटेज बनाता है. कॉन्ट्रैक्ट्स, आईपीसी, सोगा का देखिए 10 मार्क्स है, पार्टनरशिप का 10 मार्क्स है, एनवायरमेंट तो खैर जरूरी है ही है, बट ये इकलौता यहाँ पे आप देखेंगे टॉट्स और एनवायरमेंट का कंट्रीब्यूशन है. अपार्ट फ्रॉम दिस एसआरए और लिमिटेशन भी आ जाता है. तो ये एक एग्जॉस्टिव एनालिसिस है कि क्या वेटेज सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है. तो इसलिए मैं कह रहा था कि जूरिस्प्रूडेंस का आपको क्वेश्चन करना चाहिए, एंड फॉर दिस यू नीड टू प्रैक्टिस दीज वॉल्यूम्स और एनी बुक फॉर एलएलएम व्हिच कम्स विद एमसीक्यूज. आई मस्ट टेल यू आंसर्स गलत होंगे, कुछ क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेंगे, बट आप गूगल करके आंसर्स थोड़ा सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कुछ बुक्स रेफर कर सकते हैं. यू कैन आस्क एनी ऑफ द यूट्यूब चैनल्स, इतने वीडियो बनाए हुए हैं, उनके फॉलो करके उनसे क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं. तो दिस वे यू कैन हैव एन अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दी सब्जेक्ट एंड नुएंसेस. जैसे जूरिस्प्रूडेंस में आपको स्कूल्स अच्छे से कवर अप करने चाहिए. व्हाट आर द स्कूल्स देयर, कौन सा ऑथर था, अगर हिस्टोरिकल स्कूल का आइडिया ले रहे हो तो सैवनी, मेन, पुश्ता, इनके बारे में पता चाहिए. सैवनी को डार्विन बिफोर डार्विन कहा जाता है. उसकी स्टेटमेंट द लॉ ग्रोज विद द पीपल नेशन वाली जो एक स्टेटमेंट आती है, वो जीस्ट का कॉन्सेप्ट किसका था, तो वो वाला की कॉन्शियसनेस कैसे लेट होती है कि लॉ इज नॉट मेड, इट इज फाउंड, वो वाली लाइन्स हो गई हैं. हेनरी मेन कहेंगे तो स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, प्रोग्रेसिव सोसाइटी, हाउ दे फोकस्ड ऑन लीगल फिक्शन एंड ऑल दोज थिंग्स. तो ये कमांड होना चाहिए. नेचुरल स्कूल में जो स्टेजेस है कि डार्क एज में कौन था, मिडिल एज में कौन था, रेनिसा में कौन था, ये हो गया. बुक्स हो गई जैसे कि प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, ये ऑस्टिन की किताब है. लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड, बेंथम की किताब है. कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ किसकी किताब है. तो ये जैसे फेमस बुक्स हो गई, किसी फेमस आर्टिकल्स हो गए, आपको आइडिया होना चाहिए. नाउ कमिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट 1 से पार्ट 4A तक के तो आर्टिकल्स रटे होने चाहिए, बिकॉज फंडामेंटलाइज डीपीएसपी और पहला पार्ट जो है स्पेसिफिकली उसके तो क्वेश्चन सीधे आते हैं कि भाई हाँ कहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट दे रखा है, कहाँ पे आपको एक अबॉलिशमेंट ऑफ अबॉलिशिंग टचेबिलिटी दे रखा है, ये दे रखे हैं. तो ये फंडामेंटल राइट्स तो चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. डीपीएसपी में बच्चे पढ़ते नहीं तो कंफ्यूज हो जाता है आंसर. फंडामेंटल राइट्स सबको आइडिया होता है. डीपीएसपी में कोई पूछ ले कि भाई 42 या 41 में क्या है, लोग सोचते हैं भाई क्या मार्क करें, बिकॉज मेनली 44 सबने सुना होता है, नॉन एनफोर्सिबिलिटी का 37 सुना होता है, इंटरनेशनल स्टेट रिलेशंस की 51 सुनी होती है, 50 आपका सेपरेशन की सुनी होती है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, बट कुछ में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो इसलिए आपको ये डीपीएसपी का भी आइडिया होना चाहिए. देन पार्ट 4 में कई बार होता है आपसे पूछ लेंगे 51 कैपिटल ए क्लॉज आई क्या है. आप ड्यूटी में आप नहीं कर पाएंगे. मेनली बच्चों को 51 ए जी जो एनवायरमेंट को डील करते हैं और 51 ए के जो आपका एजुकेशन के लिए डील कर रहा है, जो 86 अमेंडमेंट से आया था उसका आइडिया होता है. बट आपको एक आइडिया होना चाहिए. आपको जुडिशरी में भी एग्जाम में क्या करेगा, ये यूपीएससी की तैयारी करना है, उससे में कोई क्वेश्चन फंडामेंटल रिलेटेड हुआ है तो आप उसको आंसर कर सकते हैं. इसलिए इनके आइडिया होना चाहिए. टॉर्ट्स में ज्यादा नहीं पढ़ना, डिफेंसेस का आइडिया रखिए. टॉर्ट और टॉर्ट्स में क्या डिफरेंस होता है, किसकी कौन सी थ्योरी थी, कौन से एक दो मेजर केस लॉज होते हैं, उनके जो टॉर्ट्स के मेन टॉर्ट्स होते हैं जैसे नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, डिफॉर्मेशन, उनमें क्या क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, कोई लैंडमार्क केस. कोई डिफेंसिव में सब नेसेसिटी है तो आप नेसेसिटी के केसेस देखे होंगे. अगर आपने टॉर्ट्स विकेरियस लायबिलिटी पढ़ी है, जैसे कार वाला केस होता है, कार ड्राइविंग वाला, स्प्रिंग गन का केस हो गया, हेन्स वर्सेस हार्वुड हो गया, जिसमें रेस्क्यू केसेस वेनफाई की एक्सेप्शंस में कवर होती है नहीं होती है. तो कुछ लैंडमार्क केसेस का आइडिया है, बाकी जनरल एब्सोल्यूट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्वेश्चन ही आते हैं. कमिंग टू कॉन्ट्रैक्ट सी, कॉन्ट्रैक्ट्स विद पार्ट 1 मेनली फोकस ऑन पार्ट 1. पार्ट 2 को बस इंडेक्स रीडिंग मैं कहूंगा देख लीजिएगा कि लीन कहाँ आता है, पर्टिकुलर लीन कहाँ है, बैंकर्स लीन कहाँ है, एजेंसी कहाँ दे रखी है, एजेंट कहाँ डिफाइंड है, कंसिडरेशन होता है नहीं होता है एजेंसी में. बाकी तो पार्ट 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट. 1 से 73 तो क्लियर होना चाहिए. उसमें से भी 1 से तो एज ए 30 इज योर 1 से 36 इनफैक्ट इज अ वेरी बिगेस्ट चंक. मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि भाई आप वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स का है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स का है. मिस्टेक पे क्वेश्चन आते हैं. मिस्टेक ऑफ लॉ में क्या होगा, वेदर विल बी वाइड, वाइडेबल, नॉट वाइडेबल. क्योंकि ऑप्शंस आप देखेंगे अगर आप पढ़ेंगे सेक्शंस को तो 20, 21, 22 तक आपका मिस्टेक चलता है. 21, 22 में नॉट वाइडेबल वर्ड यूज हुआ है. कई बच्चे वैलिड मार्क कराएंगे उसको, तो वो चीजें गलत होती है. तो टर्मिनोलॉजीज पे क्लैरिटी होनी चाहिए. कहाँ पे वाइड शुरू हो रहे हैं 25 से लेकर 30 तक, जो वाइड चल रहा है क्या वाइड है. कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में भी कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ पे डिफाइंड है कंटिजेंट, कहाँ पे हैपनिंग डिफाइंड है, कहाँ पे नॉन हैपनिंग डिवाइड है, कहाँ पे इम्पॉसिबल कंटिजेंट जो होते हैं वो डिफाइंड है. एंड 56 क्या है, 55 क्या है, हाउ यू डील विद द रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस वाली सीन जो होती है उसमें,
देन व्हाट इज एंटिसिपेटरी बीच, पर्सनल परफॉर्मेंस, सो दोज थिंग्स का आपको वेटरनरी डैमेजेस, तो एक बेसिक आइडिया इंपॉर्टेंट केस कॉन्ट्रैक्ट में केस लॉस वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। कार्डियल स्मोक बॉल हो गया, केदारनाथ गौरीनाथ हो गया, आपका लालवन शुक्ला हो गया, तो ये फेल्ट हाउस बिंडली, फॉरेन लॉ केसेस की तो लाइन लगी हुई है, पावल वर्सेस ली, डनलप न्यूमेटिक टायर्स, तो इन सब बेसिक केस लॉस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप गो थ्रू करेंगे, इसलिए आप किसी भी नाइल से बुकलेट्स रेफर कर सकते हैं, अगर आपने कॉलेज टाइम में बुक्स रखी है उनको रेफर कर सकते हैं, नहीं तो नोट्स आजकल तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम हर जगह नोट्स अवेलेबिलिटी होती है, यू कैन रेफर देम आल्सो, एंड इन केस एनी वन ऑफ यू need certain material, you can also contact me on my LinkedIn or any platform which I'm providing details for the, उस पर आप contact मुझसे भी ले सकते हैं। Then for IPC, सी IPC में ज़्यादा बल्कि रीडिंग नहीं करनी है, सेक्शंस का आइडिया रखिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं कुछ, उस पर फोकस करिए। पार्ट 4 क्लियर होना चाहिए आपको, जो जनरल डिफेंसेस सबसे ज्यादा आता है, पनिशमेंट वाला चैप्टर अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जनरल एक्सप्लेनेशन क्लियर होना चाहिए, सीधे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। बाकी आपको फिर पार्ट 16 और पार्ट 17 जो ह्यूमन बॉडी और प्रॉपर्टी का ऑफेंसेस है उन पे क्लियर हो, और थोड़ा डिफॉर्मेशन और मैरिज वाली यूनिट है थोड़ा देख लो, उससे काफी चंक कवर हो जाता है। इतना एक्स्ट्रा पढ़ने नहीं, कॉइनेज वाला चैप्टर पढ़े जा रहे हो, वेस्ट ऑफ टाइम। बीच बीच चैप्टर्स भी हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जैसे एडिशन वडिशन वाला हो गया, कॉन्स्पिरेसी अबिटमेंट वाले हो गए, उनको देख लो एक बार, इतना डेप्थ में नहीं आता है, क्वेश्चन पेपर आप देखोगे आइडिया लग जाएगा क्या क्या आता है। शोगा में भी वही है, 3-4 सेक्शंस हैं, उनके फेवरेट टाइप होते हैं, 16 में पूछ लेंगे कैविट एम्प्टर का है, वेंडिटर का है, फिटनेस कहाँ दे रखी है, पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन कहाँ होती है, टाइप्स क्या होती हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन है ना। एनवायरमेंटल लॉ में केस लॉस सीधे सीधे आते हैं, तो एनवायरमेंटल लॉ if you want to study you have to focus on the case laws, because case laws का अच्छा खासा वेटेज है। they will ask you सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया में कौन से केस है, रतला म्युनिसिपैलिटीज किससे रिलेटेड है, वेल लॉ सिटीजन वाला क्यों इंपॉर्टेंट था केस, कभी कभी पूछ लेंगे ग्रीन जस्टिस कौन है। सो फॉर दीज थिंग्स यू हैव टू बी वेरी वेल अवेयर विद दीज थिंग्स। वाटर पोल्यूशन का ईयर पूछ लेंगे, हो सकता है सेक्शन पूछ लें, एनजीटी में कहाँ पे अपील सुप्रीम कोर्ट जाएगी, सेक्शन दे रखा है कि सेक्शन 5A है 5 है, सो यू हैव टू बी कॉशियस ऑफ दोज थिंग्स। मेनली केस लॉज और डॉक्ट्रिन्स है कि पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन कौन से केस लॉस आई, सबको पता है कमलनाथ का स्पैम होटल केस आई थी, तो इस तरह से आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। देन पीआईएल में तो बेसिकली स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, एंड कम्स विद योर चार्टर्स के क्वेश्चन हो गए, और या तो आपके बेसिकली जो बॉडीज हेडक्वार्टर्स टाइप हो गए उस टाइप के क्वेश्चंस कवर हो। एंड सारे लिमिटेशन ऊपर देखेगा, लिमिटेशन एक्ट का अगर आप शेड्यूल देखेंगे तो शेड्यूल में जो आर्टिकल्स दे रखे हैं, बेसिकली मूवेबल प्रॉपर्टी जनरली 12 होती है, मूवेबल 3 साल होता है, तो डिमार्केट कर सकते हैं उसको, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं सबकी, कब इमूवेबल प्रॉपर्टी में 12 की जगह 30 साल की हो जाए, जैसे फोरक्लोजर रिडीम में हो जाता है, तो उसके ऊपर एक बार शेड्यूल देखोगे रफ आइडिया लग जाएगा। बाकी लिमिटेशन के स्टार्टिंग सेक्शन तो वेरी इजी है, आप मार्जिनल नोट पढ़ो उससे भी कर सकते हो, कहाँ डिसेबिलिटी दे रखी है, कहाँ कंडोनेशन दे रखा है, कहाँ पे प्रीएम्पशन सूट्स हैं, तो वो सब आइडिया लग जाएगा। So these were the thing I'll say, I've given you idea कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए, आप उनको कैसे गो थ्रू कर सकते हैं, कौन से टॉपिक ज़्यादा फोकस करना चाहिए। Now coming to subjective question, how to deal with this? This is a very important, so I'll ask anyone who's watching this video to be very careful here कि कहाँ से कैसे राइटिंग करनी है। तो अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्रिटिकली एग्जामिन द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी एंड लेजिटिमेसी ऑफ रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो अब इस क्वेश्चन देख के आपके मन में बहुत एक्साइटमेंट आई होगी कि भाई इतना तो रिजर्वेशन इजी टॉपिक आ गया, एंड आई एम वेल वर्स्ड रिजर्वेशन क्या होता है, बट अगर आप ध्यान से देखो ये आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 का कंपाइलेशन है क्वेश्चन में, बिकॉज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 15 डील करता है और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 डील करता है। अब आपको 150 वर्ड में लिखना है, कीपिंग इन माइंड आई टोल्ड यू अर्लियर ना कि 150 वर्ड्स आर देयर इन द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो इफ यू अप्लाई अ लॉजिक, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने पढ़ा हुआ इस चीज को, आपको पता है 15 आर्टिकल पे भी आप 2 पन्ना लिख सकते हो, 16 आर्टिकल पे भी 2 पन्ना लिख सकते हो, केसेस की कमी नहीं है, नंबर ऑफ केसेस, बिकॉज उन्होंने पूछा है एज डिवाइड बाय सुप्रीम कोर्ट, यानी केसेस वे में आपको समझाना है, बट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस है। आपको अगर आईएलआई में अच्छे मार्क्स फेच करने हैं, हाउ शुड राइट, व्हिच आई एंड माय सर्टेन अदर फ्रेंड्स हैव फॉलोड जो हैव मेड इनटू द सिलेक्शन। सी फॉर दिस आंसर बेसिकली आई अप्लाइड क्या होता है रिजर्वेशन, एक लाइन में बताएंगे कि रिजर्वेशन इज एन अफर्मेटिव एक्शन, क्यों दिया जाता है कि मार्जिनाइज्ड क्लास का अपलिफ्टमेंट हो, दे आल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एनरिच देमसेल्व्स विद द नुआंसेस ऑफ द एजुकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। तो एक दो लाइन में एक फैसेट दे दिया। फिर सीधे आर्टिकल 15 एजुकेशन की बात करता है एंड हाउ इट प्रोवाइड्स दी, अब यहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही थी, तो आपको 15.1 की नॉन डिस्क्रिमिनेशन लिखने की कोई नीड नहीं थी, 15.2 की दिखाने की कोई नीड नहीं है, 15.3 की स्पेशल प्रोविजंस का चाहो तो लिख दो, बट वो भी इतना इंपॉर्टेंट है। मेनली यहाँ पे जो स्ट्रेच करना था 15.4 और 15.5 और 15.6 पे करना है, बिकॉज एजुकेशन को वही डील करते हैं कि कैसे ऐसी बीसीस पे एप्लीकेबल होता है। अब यहाँ पे भी कैच है, कई बच्चे होंगे आर्टिकल 16 क्वेश्चन लिख रहे होंगे इसके अंदर, उसमें एससी बीसी लिख के आ जाएंगे, वहाँ पे भाई बैकवर्ड क्लासेस हुआ है, तो टर्मिनोलॉजीज पे भी कमांड होगी, कहाँ पे एससी बीसी आ रहा है, कहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस आ रहा है, कहाँ पे एससी एसटी आ रहे हैं, कहीं पे नहीं आ रहे हैं, तो उन पे क्लैरिटी होनी चाहिए। कहाँ पे 4A में कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी लिखी है 16 आर्टिकल में, या 4B में लिखी है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये चीज है, तो जैसे कि आप लिखेंगे कि रिजर्वेशन का ये है, फिर आर्टिकल 15 बेसिकली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 15.4 में बताया गया है,
उसको 15 में चंपकम दौराई की हिस्ट्री जो रही थी उससे आपको रिलेट कर सकते हैं कि पहले केस हुआ था, उसके बाद दिक्कत हो गई थी चंपकम दौराई में आर्टिकल 29(2) सब क्लॉज लगा के उसे कैंसिल आउट करा दिया गया था, इसलिए 15(4) में लिखा है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट आर्टिकल 29 अमेंडमेंट से आया था, ये फर्स्ट अमेंडमेंट से 15(4) ऐड हुआ। तो ये कैसे ऐड हुआ, फिर 15(5) जो आया प्राइवेट वाले इंस्टीट्यूशन से आया, 93rd अमेंडमेंट से आया, पीए नामदार केस के बाद आया। तो ये आपको हिस्ट्री थोड़ी पता नहीं चाहिए, आप इसको मतलब अल से सम अप करके थोड़ा सा लिख दिए, इतना आप केस दो दे दिए काफी है। देन कमिंग टू 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ताकि सबका इक्वल हो। हमारी इंडिया इज अ डाइवर्सिटी वाली कंट्री है, ब्रदरहुड की हम लोग फंडामेंटल पे बात करते हैं, इसलिए सबको मौका मिले कि बात प्रमोट होती है। फिर 16(4) में कैसा बताओगे, क्या क्या अमेंडमेंट्स आए, 16(4) में क्या है, 16(4) में क्या है, थोड़ा सा करके इंदिरा साहनी का नाम जरूर डाल दीजिएगा। इंदिरा साहनी केस वेरी फेमस केस, अगर रिजर्वेशन की बात करें सेम ना करें तो नहीं होगा। एम नागराज थोड़ा जस्ट दिया, तो इतना एक रफ आइडिया देके आप समझा सकते हो। सो दीज आर द कंटेंट्स जो आपके आंसर में होने चाहिए टू मेक इट अ गुड आंसर। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, इट इज ऑस्टिन्स कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी इट विल एग्जामिन इन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस। तो अब आप क्वेश्चन लिख लो, तो ऑस्टिन का अगर आपको लाइन ही नहीं पता है देन आई डोंट थिंक विल गेट मार्क्स, बिकॉज ऑस्टिन की लाइन लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन बैंक बाय सैंक्शंस लिखना ही पड़ेगा, बिकॉज वो कीवर्ड्स है। ऑस्टिन आता तो आपके दिमाग में तीन चीजें आनी चाहिए, लॉ, कमांड, सैंक्शन, क्योंकि ऑस्टिन की वो जान है। तो इस बेसिस पे आप शुरू करेंगे, देन यू विल डिफाइन सॉवरेनिटी क्या होती है, कि फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल वो होती है। बट हाउ ये फेडरल की बात कर रहे हैं कि स्टेट और सेंटर के वे में जानना चाह रहा हूं। तो आप इसको इंडिया का एग्जाम्पल लेकर समझा सकते हो कि इंडिया जैसे एक यूनियन ऑफ स्टेट्स एज पर आर्टिकल 1 हमारी है, एंड इफ यू लुक एट द स्टेट एंड सेंटर वी हैव प्रोवाइडेड शेड्यूल 7 जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स हमें दे रखा गया है। हमारा आर्टिकल 246 भी इनकी बात करता है, लिस्ट की बात करता है, यू कैन रिलेट विद 246 एंड शेड्यूल 7 कि जहां जहां पे जो हमारा यूनियन सब्जेक्ट है उस पर सेंटर सुप्रीम है, जहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट्स हैं आपके स्टेट सुप्रीम है, और कुछ जगह पे हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट है जहाँ पे दोनों लॉज बना सकते हैं। बट इन केस प्रेगनेंसी होती है तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा इसका भी हमारे पास मेंशन है, कहाँ पे हमारे पास स्टूडरी पावर दे रखी गई है जो सब्जेक्ट्स कवर नहीं है। तो इस तरह तो थोड़ा बता सकते हो। उसके बाद अगर इसको रिलेट करें इंटरनेशनल लॉ से भी थोड़ा, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे इंडिया के रिलेट कर लिया, हम इंटरनेशनल पर कंपेयर कर सकते हैं कंट्री को। जैसे अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में स्टेट्स ज्यादा सुप्रीम है, बिकॉज वहां पे स्टेट्स पे ज्यादा पावर होती है ना कि सेंटर पे, क्योंकि वो फेडरेशन। तो कैसे आप वो थोड़ा रिलेट कर सकते हो। इंटरनेशनल में एक कॉन्सेप्ट होता है एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी वर्सेस रिलेटिव सॉवरेनिटी वाला जो होता है, उसको रिलेट कर सकते हो कि भाई बीइंग अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स यूएन दैट इज यूनाइटेड नेशंस, आप अपनी सॉवरेनिटी सरेंडर नहीं कर देते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट रिलेटिव सॉवरेनिटी पे चलता है। ऐसे कुछ टर्म्स पे ये दिखाता है कि यू आर अ स्कॉलर स्टूडेंट, आपको रिलेटिवली आइडिया है चीजों का। बाकी बच्चा ऑस्टिन और जूरिस्प्रूडेंस रिलेट करके आ जाएगा, बट इफ यू रिलेट विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बिकॉज आईएलआई में आपको यही इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पे ही काम करना होगा। दीज थिंग्स हेल्प यू इन। तीसरा क्वेश्चन आता है राइट द एसे ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एज आई गेस ये क्वेश्चन सभी लोग कर लेंगे, सबको पता है कि व्हाट इज फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली मींस impossibility to perform. This impossibility can occur from the starting also, it can subsequently also rise. अगर आप सेक्शन 56 पढ़ेंगे उसमें साफ साफ इनिशियल impossibility और subsequent impossibility की बात की गई है। देन आप केस लॉस बताएंगे कि क्या क्या इम्पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जैसे कि वॉर हो गया, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस बन गई। तो एग्जांपल के थोड़ा बता दीजिए क्या हो सकती है। तो केस लॉ बताएंगे, टेलर वर्सेस कैडवेल में से डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर पे केस था। क्रेल वर्सेस हेनरी जो कोरोनेशन केस था। आप खुद रिलेट करते हो इंडिया द लैंडमार्क केस, सत्यव्रता घोष लेड एन इंपॉर्टेंट फैसेट ऑफ द सेक्शन 56। कमर्शियल हार्डशिप्स होती हैं फ्रस्ट्रेशन में कवर या नहीं होती हैं। एंड अगर आपने पढ़ा होगा कि कोरोना टाइम पे हमेशा 56 आया था, बट उस समय इट नॉट केम एज 56 बट फोर्स मेजोरे क्लॉज। तो फोर्स मेजोरे का क्या रिलेशन है थोड़ा समझाते हैं, उसमें भी आप डाल सकते थे। तो ये दिखाएगा कि आप रिसेंट अपनिंग से भी अवेयर हैं एंड आपको एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट दिलाएगा। एंड कमिंग टू द लास्ट मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड। अब इसका क्वेश्चन लिखना है और आप रेग वर्सेस गोविंदा केस लिख के नहीं आएंगे, जस्टिस में भी लिख के नहीं आएंगे, तो एग्जाम में आपको ऑलरेडी कम मार्क्स देगा। फिर आप क्लास 4th और क्लास 3rd में डिफरेंस दिखाते नहीं आएंगे कि कहाँ पे सफिशिएंटली 300 में आता है, कहाँ पे इन ऑल प्रोबेबिलिटी वर्ड आता है जो कि डिफरेंशिएट करता है, और कहाँ पे फर्स्टली एंड सेकेंडली क्लास में जो वर्ड्स में खेल होता है उसमें आप डिफरेंस नहीं बता पा रहे हैं, तो नहीं होगा। इसमें विरसा सिंह वाला केस एक दो आपको डालने पड़ेंगे विच विल शो द पैटर्न। तो ये कुछ बेसिक इनपुट्स थे जो मैं देना चाहता था। आंसर राइटिंग अगर आप एक आइडियल कैंडिडेट की तरह करना चाहो, सिलेक्शन चाहते हो जाए, तो ये फैसेट्स तो आपके आंसर में होने चाहिए, अपार्ट फ्रॉम अदर फैसेट आप डाल लो, इनको आप मिक्स नहीं कर सकते। Now coming to the interview process, so if you look at the interview process also, it's a 2-day process. एक दिन आपको रिजर्व कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, एक दिन अनरिजर्व कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। क्योंकि जो अभी फाइनल मेरिट लिस्ट जो आती है, इस बार आईएलआई में 11 मेरिट लिस्ट आई थी, बिकॉज क्या हुआ था, आईएलआई क्लैट के पहले हुआ था, तो कई बच्चों को जो क्लैट में भी सिलेक्ट होगा उन्होंने आईएलआई ऑफ कोर्स विड्रॉ कर लिया होगा, तो इसलिए लंबी मेरिट लिस्ट चली थी। बट जो मेरिट लिस्ट आती है उसके बाद इंटरव्यू की डेट फिक्स हो जाती है। इट्स अ 2-day प्रोसेस एंड आइडली इंटरव्यू लास्ट फॉर 5 to 10 मिनट्स एंड डाइवर्सिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं अपना ही बताऊं आप लोग को, जब भी आप फॉर्म भरते हो आएगा उसमें आप सब्जेक्ट्स भरवाए जाते हैं, क्या सब्जेक्ट्स पढ़े हो, तो मैंने डाला था कि भाई इतने सब्जेक्ट्स कौन टाइप करेगा, तो मैंने मेंशन माय सेल्फ दैट आई वाज डूइंग माय इंटरनेशनल लॉ ऑनर्स।
So I have written in that subject. So when I went for the interview, and the director himself was sitting, that is Professor Manoj sir, who was there, and there was a bench of five. I'm using the word bench, but I hope you understand. So पांच लोग का पैनल था, and they asked me questions based on that thing. तो पांच में से किसी ने कोई नहीं पूछा, सिर्फ मनोज सर ही पूछ रहे थे, because international law उनका forte है. So he asked me lot of questions on international law, की what is sovereign equality principle, कहाँ दे रखा गया है, यूएनएससी का मेंबर फंक्शन क्या होता है, क्या मेंबर्स का पोजीशन है, हाउ इट इन्फोर्सेस द मैकेनिज्म्स, क्या होती है पीसफुल मेथड्स, क्या है, कहाँ पे दे रखा है. तो आपको एक आइडिया हो जाएगा. अगर आप इंटरनेशनल ऑनर्स लिख के आ रहे हैं, आपने स्पेशलाइजेशन उस पर किया, अगर आपको यही आइडिया नहीं है, तो दोज थिंग्स गोज अगेंस्ट यू. फिर दे आस्क मी क्वेश्चन की ट्रीटी और कन्वेंशन में क्या डिफरेंस है, सोर्सेस कहाँ दे रखे हैं, इंडिया कौन से में मेंबर्स थी. तो कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं पता. जैसे ही आस्क्ड मी वेरी गुड क्वेश्चन, ट्रीटी और कन्वेंशन में क्या अंतर है, ट्रीटी और प्रोटोकॉल में क्या डिफरेंस है. For me, those all three I have heard as a similar thing. So कुछ basic nuances का differences होता है. You should go through them. And apart from that, he asked me also that कि भाई देखो यहाँ पे तो international law honors specifically हम नहीं कराते, तो other subjects किस में interest है. मैंने कहा consti sir. तो he asked me certain questions on constitution, like article 72 क्या है, pardoning power दे रखी गई है, तो discretion किसका होता है, governor की कहाँ दे रखी गई है, amendment procedure क्या होता है. So basic questions. But then he asked me a question based on entry list of union schedule, that is list 1 entry any subject of list 1 of schedule 7. So he asked me, क्योंकि वो जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि सब्जेक्ट इस लिस्ट का जो है किससे रिलेटेबल है, वो उन्होंने इसलिए पूछा था. एक लिस्ट के अंदर आप देखेंगे सब्जेक्ट आता है जो कि आर्टिकल 253 से रिलेटेड है, बिकॉज 253 गिव्स यू रेटिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स. तो वो इंटरनेशनल लॉ से ही लिंक चीज थी. दैट्स व्हाई ही आस्क्ड, व्हिच आई वाज नॉट अवेयर. अगर आप नहीं पता है, यू कैन हम्बली से सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर, आई एम अनअवेयर विद इट, या फिर आई एम नॉट अवेयर विदाउट विद दिस कॉन्सेप्ट. यहाँ पे ब्लफ करने की नीड नहीं है. ये कोई आपका लोकल कॉलेज नहीं है कि प्रोफेसर्स बैठे हैं टाइम पास के लिए. उनके पास कैंडिडेट्स अच्छे और भी हैं आपसे, क्लोज कॉल में भी होंगे आपसे. सो यू हैव टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव, यू हैव टू बी क्रिस्प, यू हैव टू नॉट जस्ट गो राउंड द बुश कि भाई चार बातों में घुमा के सोचेंगे इंग्लिश में हमने बड़े वोकैब में घुमा दिया कि इनको भी फूल कर देंगे. दे आर नॉट. They're very experienced teachers and they know the strategies which all other guys do, because वो भी किसी इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए हैं, उन्होंने बैचमेट्स टाइम पे क्या कर रहे थे, तो सबको पता होता है क्या चलता है. So these things you have to be very cautious. And also क्वेश्चन सभी एनवायरमेंटल टॉपिक काफी पूछे गए थे. कई बच्चों से डिफरेंस पूछा था कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. टू माय सरप्राइज आधे बच्चों को पता नहीं था. बच्चे बाहर बोले भाई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है. तो प्लीज डोंट डू सच ब्लंडर्स. एनवायरमेंटल लॉ पे केस लॉ पे कम होना चाहिए. वेल्लोर सिटीजन केस में क्या हुआ है, रतलाम म्युनिसिपैलिटी में क्या हुआ है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या होता है, कहाँ से आया, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, रियो कॉन्फ्रेंस, जोहान्सबर्ग की जो समिट थी क्या क्या था, क्योटो मॉन्ट्रियल में क्या होता है. कई बच्चे कंफ्यूज जाते हैं क्योटो कहाँ पे है, क्योटो वाज ग्रीन हाउस और क्योटो वाज फॉर ओजोन, तो इसमें डिफरेंस क्या हो जाता है, तो वो भी आपको क्लियर रहना चाहिए. ये चीज थी. कुछ बच्चों से प्रियम्बल रिसाइट करने को बोला गया एंड कई बच्चे रिसाइट नहीं कर पाए. एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, अगर आपको प्रियम्बल नहीं पता, यू शुड बी अवेयर फ्रॉम द वर्ड ऑफ स्टार्टिंग टू द एंड. हो सकता है आप कुछ वर्ड्स हैं, बट जो उसके की एलिमेंट्स है, जैसे कि आपके JLEF, दैट इज जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशलिस्ट सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वो फ्रेज जो चलता है कैसे ऑर्डर में चलता है, कब हमारी इनैक्टमेंट डेट है, तो वो चीजें कौन के पास सोर्स है, दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, हैविंग solemnly resolved, जो लाइन आती है उस तरह से आप आइडिया लगा सकते हो. सो कोर कॉन्सेप्ट एज आई टोल्ड यू की क्लैरिटी होनी चाहिए सब्जेक्ट्स की, एंड यू मेंटेन कॉन्फिडेंस इन आंसर्स. अगर आप श्योर आंसर पे, दे विल ट्राई टू कंफ्यूज, आप श्योर रहिए. अगर आपसे पूछेगा यूएनएससी का फंक्शन क्या है, जैसे बट इट आल्सो लेजिस्लेट ऑन सर्टेन थिंग्स. सर लेजिस्लेटिव एंड डेलिबरेटिव असेंबली इज जनरल असेंबली, उनका काम उस पर नहीं होता. तो ये चीज होती है. एंड जो भी था P8 सब्जेक्ट्स का प्लीज दोबारा रिवाइज कर जाएगा इंटरव्यू प्रोसेस पे. तो दीज वर द सर्टेन टिप्स फ्रॉम माय साइड फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस आल्सो. Now, why ILI and why not ILI? So first of all, as I said, written also the location advantage, that it is in front of Supreme Court and adjacent to Law Ministry. So there were a lot of times you will see lectures happening from the learned Supreme Court judges, also a lot of big legal luminaries like Professor Upendra Bakshi also keep on visiting this university. तो lectures आपको काफी अच्छे diversified personality से मिलेगा attend करने को, which will surely sharpen your acumen and will help you build connections also. उसके बाद आपका लाइब्रेरी एक्सेस काफी अच्छा है, लाइक विच विल गिव यू प्लेथरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो बाकी लोकल कॉलेजेस के में नहीं मिलती है, कुछ एनएलयूज तक में भी नहीं है. तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि ILI गिव्स अ गुड एकेड. और एकेड स्किल्स का जो डेवलपमेंट ILI में होगा काफी एनएलयूज में नहीं होता. अगर आप टॉप 3 एनएलयूज हटा दीजिए, बाकी एनएलयूज में भी नहीं हो पाएगा डेवलपमेंट जो ILI में आप सीखोगे. बिकॉज एनएलयू में आप जाते हैं, माई सेल्फ फ्रॉम बीइंग एनएलयू कैन टेल यू कि एनएलयू में एग्जाम्स के टाइम पे ही बच्चे पढ़ते हैं, कोई पहले से पढ़ाई नहीं होती. तो इसलिए एक एकेडमिक स्किल डेवलपमेंट ओरिएंटेड चाइल्ड है, इफ यू वांट्स टू सीरियसली डू LLM, तो उस केस में he should appear for this academic skill, because generally आप देखोगे मेजर कैंडिडेट्स LLM बैकअप ऑप्शन होता है. they don't opt for LLM. वो इसलिए करते हैं कि कोई और तैयारी कर रहे हैं, ईयर वेस्ट नाउ,
दैट्स द मेजर रीजन एलएलएम करने का, नॉट फॉर परसुइंग एकेडमिक कोर्स, बट जिसका एकेडमिक है, इसको टीचर एज ए हॉबी है, उसको शौक है पढ़ाने का, एलएलएम अच्छी जगह होनी चाहिए। फॉर दैट आईआईटी इज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन। नाउ कमिंग व्हाई नॉट आईआईटी, see first of all, not non-availability of hostel comes a very big reason for not joining ILI, because Delhi आप सब जानते हैं it's a very crowded city, pollution का फैक्टर क्या है, many people hesitate to live in Delhi, then that too for a 1 year, और बाहर रहने में खर्चे कई सारे होते हैं, for you have to reside, you have to rent the rent area, rent का issue होगा, transportation का issue होगा, there are a lot of things which make you hesitate in going with the ILI and better other options. Then the academic schedule is also very stringent, तो जो बच्चों को यूजीसी नेट की तैयारी करनी, जुडिशरी कर रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं, उनके लिए भी दिक्कत होती है, बिकॉज आईआईटी में आपको पढ़ाया जाता है, देयर इज अ पेडागोजी एंटायरली डिफरेंट, वहाँ पे आपको केस मटेरियल्स या फिर आपको मटेरियल्स डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, उस पर डिस्कशंस भी होता है, तो वो दैट्स द डिफरेंट स्टाइल ऑफ पेडागोजी जो बाकी कन्वेंशनल स्कूल्स में पढ़ाई जाती है उससे काफी अलग होती है। फिर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने का सपना था आपका, तो आईआईटी जाके थोड़ा सा आपको स्टैंड डाउन होना पड़ेगा, वो तो आप खींच नहीं पाएंगे, बिकॉज इज ऑल्सो बिजी शेड्यूल। तो ये था वाई एल आई एंड वाई नॉट आई। Then comes question what not to do. See first of all, जो बैरक्स छोटे वाले बैरक्स एसआरए लिमिटेशन में ज्यादा 3 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, तो उनमें ज्यादा नहीं करना है, उनके केस लॉस बैठ के नेट से निकाल, उनके केस लॉस इसको करने की नहीं आए तो छोड़ दीजिए, बिकॉज आपको एग्जाम में फुल मार्क्स नहीं लाने, यू हैव टू सिक्योर अ सीट, वंस यू गेट योर सीट उसके बाद अपनी पढ़ाई करते रहिएगा आगे, दैट्स द थिंग। और यहाँ पे लोकल लॉज और स्टेट लॉज इतना ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज आते हैं, जैसे कि कोई पॉलिसी डिसीजन आ गया, कोई ऑर्डिनेंस कोई स्टेट लेके आई जो अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी चैलेंज हो गई, जैसे भी जिहाद यूपी का आया था, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चैलेंज हुई थी, या कोई प्रैक्टिस चल रही है, जैसे साउथ में जलीकट्टू पे चलता रहता है केस लॉ, सुप्रीम कोर्ट पे हो गया, तो वो सब चीजें इंपॉर्टेंस होती हैं। एंड रिसेंट केस लॉस पढ़ने की नीड नहीं है, क्लैट का एग्जाम नहीं है, बहुत ही लैंडमार्क केस जैसे दिल्ली का भी हाई कोर्ट में आया था, रेड फाउंडेशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में मैरिटल रेप को डिस्कस किया गया था, उसके बाद ये मटकरे जी का केस आया था, अभी डिमोनेटाइजेशन वाला जो केस आ गया है, विवेक नारायण शर्मा वाला हो गया, ईडब्ल्यूएस का केस आ गया है, ऐसे केसेस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, उनकी बेंच स्ट्रेंथ भी इंपॉर्टेंट है, कौन से जज ने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया, जैसे डिमोनेटाइजेशन में जस्टिस नगरत्ना जी ने अपना डिसेंटिंग ओपिनियन दिया था, तो कैसे कौन सा केस इंपॉर्टेंट है ये आपको देना चाहिए। एंड रिमेंबर माय बिट ऑफ एडवाइस, हमें एग्जाम क्लियर करना है, मास्टरी नहीं करनी है, मास्टरी करने के लिए हम पीएचडी करते हैं, तो हमें पीएचडी नहीं करनी किसी सब्जेक्ट पे, इतना करो एग्जाम निकालना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे योर सिलेक्शन मैटर्स एंड नॉट योर नॉलेज। इफ यू आर क्वालिफाइंग द एग्जाम, लोग को पता होगा कि आपने एग्जाम निकाला है, नहीं निकाल पाए, आप जो भी नॉलेज लेके बैठेंगे, आप कैंडिडेट सेलेक्टेड नहीं रहेंगे, वो भी याद रखिएगा। सो दैट्स यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। एंड नाउ कमिंग फॉर द एंड गेम, जब डेट्स क्लोज आती है आपको क्या करना चाहिए, बेसिकली क्विक रिवीजन ऑफ द मेन सब्जेक्ट्स, दैट इज P8, देन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो साथ में करते ही रहना है। मैं तो कहूंगा अगर आप स्ट्रेटजी देखना चाह रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन को साथ में प्रिंट आउट कर लीजिए अगर आपके पास है, नहीं है तो आप एक यूट्यूब चैनल है जूरिस सेंट्रल, उसको फॉलो कर सकते हैं, उनके पास प्रीवियस उन्होंने एनालिसिस करके रखी है 15 से लेकर 2021 पेपर की, यू कैन कांटेक्ट मी, आई कैन आल्सो सेंड यू 2 to 3 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर व्हिच आई एम हैविंग, उससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। एंड यू कैन लुक अपॉन योर मिस्टेक्स, क्या कर रहे हो, इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जीएस का क्वेश्चन क्या है, लॉ में कितने तुम सही कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, एक अच्छा आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। सो दैट्स द थिंग विच यू हैव टू लुक फॉर एंड गो अहेड विद। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, यू शुड अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग फॉर्म्स एंड एसेट, मैंने आपको दिखाया, जैसे मेरी रैंक 11 थी, मेरे से ऊपर थे 4 लोग जो मेरे से 0.25, 0.50 एंड 0.75 मार्क्स आ गए थे, तो यही डिफरेंसेस जो पॉइंट वाले मार्क्स करते हैं, ये नेगेटिव के ही कॉन्सेप्ट। अगर मेरा एक क्वेश्चन सही हुआ होता तो आई वुड हैव बीन एट रैंक 7 और रैंक 8, तो उस हिसाब से ही आपको नेगेटिव पे भी वर्क ऑन करना है कि नेगेटिव मिनिमाइज हो, पहले क्वेश्चंस वो करिए इसमें शॉर्ट हो, एंड एनालाइज योर मिस्टेक्स व्हाइल डूइंग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, उन आंसर्स को कोशिश करिए याद कर लीजिए। एंड जो बुक्स में आंसर गलत होते हैं, थोड़ा आप जब एक्वेंटेड रीडिंग करेंगे पता चलेगा कौन सा आंसर गलत है, तो कोई भी बुक आप लगाएं, डीपली मत करिएगा, जहां पर आपको डाउट हो रहा है वो क्रॉस चेक कर लीजिए उस चीज को। So that's the thing for the end game, and this was the basic video which I wanted to show you guys कि कैसे क्या तैयारी करनी है, क्या exhaustive review analysis है। So wish you all the best for your preparation. Thank you. And my LinkedIn profile you can search on LinkedIn Aniket Sachan, तो आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, and any question paper you want or any details for the you want कैसे क्या पढ़ना है for CLAT, IELTS or any of the things you can contact me, even judiciary also, prelims CUP की तैयारी कैसे करनी है। For email, this is my email ID aniket.sachan@gmail.com, and that's my YouTube channel which you guys all know, so you can follow me there also. So thank you guys, and I hope you all will take these advice diligently and come up with succeeding colors, and see you in the ally selection list. Thank you guys, have a good day.